Hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So बच्चे लोग, on your popular demand, in this class we are going to prove the basic proportionality theorem. ठीक है? So this is one of the most important theorem when you are learning triangle. ठीक है? Because 2500 साल हो गए इस theorem को बनाया हुआ. ठीक है? थेल्स the great mathematician, he was a guru of Pythagoras and he has invented this basic proportionality theorem, right? So on the basis of this concept, Pythagoras theorem भी on the basis of this understanding ही proof हुआ था, right? चलो, so in this class we are going to basically prove this basic proportionality theorem. ठीक है? चलो, let's understand what is the statement of this theorem. Statement ये बताता है, so if a line drawn parallel to one side of a triangle, मतलब so you can see here, अगर ये एक्स वाई जी एक ट्रायंगल है तो इस कोई भी एक साइड ले लो, एक्स वाई ले लो या एक्स जी ले लो या वाई जी ले लो. ठीक है? किसी भी साइड के एक साइड एक अगर मैं पैरेलल लाइन में अगर ड्रॉ करूं, सो लेट्स इन दिस पिक्चर यू कैन सी वाई जी एक साइड है जिसके पैरेलल पी क्यू एक लाइन है ना ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है? सो दैट लाइन, that triangle intersecting the other two sides of a distinct point, है ना? तो that PQ is basically what this PQ is doing, XY and YZ other two side of a triangle को two distinct point पे cut कर रहा है. Getting this thing? तो ठीक है, so by this picture you can see this thing, right? So then the other two sides are divided in the same ratio. That means कि this XP divided by PY will be equals to xq divided by qg, right? So this is basically a statement of a BPT, basic proportionality theorem, or you can also say Thales theorem, right? So let's understand what all things are given in this statement. So what all things are given is that, so what all things are given is triangle XYG is a triangle and PQ parallel to YG also given. Here P intersecting at XY side of a triangle, right? And Q intersecting at XG sides of a triangle, correct? और जब ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, हमें ये चीज़ दी हुई है. सो हमें प्रूफ क्या करना है? सो वी हैव टू नाउ प्रूफ दिस एक्स पी डिवाइड बाय पी वाई इज इक्वल्स टू दिस एक्स क्यू डिवाइड बाय क्यू जी, राइट? सो दिस इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ ए क्वेश्चन, है ना, थियरम, एंड दिस वी हैव टू प्रूफ, राइट? तो अगर ये क्लियर है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, है ना, इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा. सो व्हाट वी कैन डू, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कनेक्ट दिस क्यू वाई एंड आई विल कनेक्ट दिस पी जेड, राइट? सो ऑल्सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एक्स जी, राइट? एंड आई विल ऑल्सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई line from Q. So let's take this line, this point is M and this point is N. Getting this thing? चलो, अगर ये clear है तो now what you can see in triangle XYG triangle, so now there are three triangles. एक तो triangle मुझे दिख रहा है PQY, है ना, कौन सा दिख रहा है? तो मुझे पहला एक triangle जो दिख रहा है वो दिख रहा है PQY, ठीक है ना, और दूसरा जो ट्रायंगल दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे ये वाला PQZ, ठीक है, और तीसरा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे ये वाला XPQ. वैसे और भी ट्रायंगल है, सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल और भी है, बट मुझे इस तीन ट्रायंगल की ज़रूरत है फॉर प्रूविंग दिस थियरम. गेटिंग दिस थिंग? चलो, अगर ये समझ दिख रहा है आपको, सो लेट्स टेक टू ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल मैं लूँगा एंड बोथ द ट्रायंगल्स आर, so triangle XPQ and triangle
पी क्यू वाई, ट्रायंगल पी क्यू एंड वाई, ठीक है. सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ triangle XPQ. So what is the area of triangle XPQ? So triangle XPQ is this XPQ, right? Upper wala triangle. So the area, what is the area of a triangle? The area of a triangle is half of base into perpendicular, right? So what is the base for this triangle? Triangle XPQ के लिए मैं अगर निकालूं तो what is the base? Base can be XP. So this will half into of XP into of what is the perpendicular? This is a MQ. So let's say this is the equation number 1, right? Chalo. Similarly, I have to find out the area of triangle PQY. So what is the triangle of area of a PQY? So this triangle is basically PQ and Y. Here the perpendicular is at outside, right? So here in this case, the area of triangle will be half. What is the base? Base will be the PY, and what is the perpendicular? Perpendicular will be the MQ. This is the equation number 2. Now by using equation 1 and equation 2, what we have to do? We have to divide area of triangle PXPXPQ divided by area of triangle PQY. So what will become? हमारे पास क्या आएगा? हाफ ऑफ एक्स पी इंटू ऑफ एम क्यू डिवाइड बाय हाफ ऑफ पी वाई इंटू ऑफ एम क्यू. So here MQ got cancelled, half will got cancelled. What I will get px upon of py. So what I will get? So this px upon of py. So let's take this is the question number 3. Getting this thing है ना? हमने दो ट्रायंगल लिया था एंड हमने दो ट्रायंगल के एरिया को कंपेयर किया. गॉट. चलो अगर ये क्लियर है, नाउ वी विल टेक अनदर टू ट्रायंगल्स. जैसे वन ट्रायंगल आई विल टेक इज ट्रायंगल px pq. So again I will take the two triangles. The triangle is, so let's take this color, ठीक है. So one triangle is triangle XPQ and another triangle is triangle PQY, PQG, right? Triangle PQG, ठीक है. अब in this triangle again we have to find out the area, right? चलो, so the area of a triangle so here area of a triangle XPQ will be what? Half of base into perpendicular, ठीक है, half of. So again what we can write, so हमने इस केस में क्या किया था? हाफ ऑफ एक्स पी इंटू ऑफ एम क्यू लिखा था. एक्स पी बी को बेस बनाया था और एम क्यू को परपेंडिकुलर बनाया था. नाउ इन दिस केस व्हाट वी कैन डू, मैं बेस बना लूंगा एक्स क्यू को और परपेंडिकुलर में पी एन को बना लूंगा. सो वी कैन ऑल्सो डू दिस थिंग, है ना, बिकॉज बोथ आर सेम. गेटिंग दिस थिंग. सो दिस विल बी बेस इज एक्स क्यू एंड परपेंडिकुलर इज पी एन. सो लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 4. गेटिंग दिस थिंग. चलो अगर ये क्लियर है, सो नाउ वी हैव ट्रायंगल. सो नाउ वी हैव ट्रायंगल PQG. So in this PQG area will be the half. If I have to find out this area of this PQG, so this will be half. So the base will be what? Base will be PQ, base will be QG और perpendicular क्या होगा? External perpendicular, that is the PN. ठीक है. So this will be equation number 5. Now using equation 4 and equation 5, है ना, हमें क्या करना होगा? हमें देखना पड़ेगा रिलेशन. So by using equation 4 and equation 5, using equation 4 and 5, है ना, को डिवाइड करेंगे. डिवाइड बेसिकली, ठीक है. सो व्हाट इज द इक्वेशन 4 इज हाफ ऑफ एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू इंटू पी एम. This is basically half of xq into a pm divided by half into
So this was the QZ upon into PN, QZ and PN. So this is basically QG into of PN. ठीक है. So here half got cancelled, PM got cancelled. So what I will get XQ upon of QZ. So let's take this is equation number 6, right? चलो इक्वेशन 4 क्या था हमारा? इक्वेशन हमारा 4 था. So this XP upon PQ and equation 6 क्या है हमारा? So equation 6 we have XQ upon QZ. So XQ upon QZ. Now what you can see कि PQ and XZ are both are parallel lines, right? PQ and YZ both are parallel lines. और तो दो ट्रायंगल्स हैं, the triangle PQY and triangle PQZ है ना, वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हुई है, ठीक है, जिसका कि बेस सेम है एंड द बेस इज PQ, राइट? तो इन दैट केस so the area of both the triangles will be this equal. So both the triangles will be equal. Getting this thing? अगर ऐसा कुछ है that means है ना कि this equation 4 and the equation 5 will be equal. So therefore what we can write is basically px upon xp upon py. xp upon py is basically equals to xq upon of qg. ये हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू हमें यही पॉइंट जो है प्रूफ करना था. सो दिस पॉइंट हमें वी हैड टू प्रूफ, ठीक है. सो आई थिंक आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की का जो प्रूफ है वो आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब ये एक हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए. मैंने एक साइड वाई जैक ऑफ जी को मैंने बेस बनाया था, उसके थ्रू मैंने ये प्रूफ किया था, इसको किया था. अगर मैं इसको भी बना लेता, एक्सपी को भी बनाता था, यहाँ से अगर इस तरीके से बनाता तो पी क्यू को मैं कनेक्ट करता है ना, तो पैरेलल हो जाता, एक्स जी के पैरेलल हो जाता. सिमिलरली मैं अगर यहाँ से यहाँ अगर कनेक्ट कर लेता तो इसके पैरेलल हो जाता, एक्स वाई के पैरेलल वो लाइन बन जाती. बट प्रूफ अल्टीमेटली इसी तरीके से होता, ठीक है. चलो अगर ये क्लियर है तो नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. मैं क्या करूँगा, मैं ये दिस इज बेसिकली प्रूफ, ठीक है. अब मैं बोथ साइड अगर +1 कर दूँ, सो इफ आई ऐड एक्सपी प्लस ऑफ एक्सपी डिवाइड बाई पी वाई प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू वाई क्यू एक्स क्यू एंड क्यू जेड प्लस ऑफ 1 अगर मैं करूँ, सो बेसिकली व्हाट आई विल गेट है ना, क्या मुझे मिलेगा? सो पी वाई एक्स पी एंड पी वाई, राइट. सो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्स पी प्लस ऑफ पी वाई डिवाइड बाई पी वाई, है ना, ऐसा मिलेगा. इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा एक्स क्यू प्लस ऑफ क्यू जी डिवाइड बाई क्यू जी, ऐसा कुछ मिलेगा. एंड लेट्स सी व्हाट इज दिस. एक्स पी एन प्लस पी वाई करूँ तो क्या बनेगा? एक्स पी प्लस ऑफ पी वाई में करूँ तो बेसिकली वो एक्स वाई बनेगा. सो दैट मीन्स एक रिजल्ट इससे निकल के ये आएगा कि एक्स वाई डिवाइड बाई पी वाई, राइट, इज इक्वल्स टू एक्स जी डिवाइड बाई क्यू जेड. सो ये भी एक रिजल्ट है ना. सिमिलरली है ना, सिमिलरली ये एक दूसरा रिजल्ट है बीपीटी का, राइट. सिमिलरली व्हाट आई हैव डन, मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिवर्स अगर कर दूँ, अगर मैं पी वाई डिवाइड बाई एक्स पी कर दूँ और क्यू जी डिवाइड बाई एक्स क्यू कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है? इसको मैंने जस्ट रिवर्स किया, रेशियो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना. व्हाट अगेन मैं क्या करूँगा, सो आई विल डू पी वाई प्लस ऑफ एक्स पी प्लस ऑफ 1 कर दूँ और इसमें अगेन मैं बोथ साइड 1 से ऐड कर दूँ. तो दिस इज एक्स क्यू प्लस ऑफ 1. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा पी वाई प्लस ऑफ एक्स पी डिवाइड बाई एक्स पी इज इक्वल्स टू क्यू जी प्लस ऑफ एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स क्यू, ठीक है. अब देखो पी वाई प्लस एक्स पी क्या बनता है? पी वाई प्लस एक्स पी. सो दिस इज पी वाई प्लस एक्स पी. सो दिस इज बेसिकली एक्स वाई, ठीक है. तो ये क्या बनेगा? सो ये बनेगा एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स पी इजकल्स टू एक्स जी अपॉन एक्स क्यू, ठीक है. अभी क्या बना? ये भी एक नया रिजल्ट बना, है ना. तो मतलब क्या हुआ, अगर हम बीपीटी से करें तो ये डिवाइड बाई ये इजकल्स टू ये डिवाइड बाई ये हो जाएगा, या ये डिवाइड बाई पूरा ये डिवाइड बाई पूरा, या फिर ये डिवाइड बाई पूरा या ये डिवाइड बाई पूरा. सो ऑल आर सेम थिंग, है ना. सो विद द हेल्प ऑफ बीपीटी देयर आर 3 रिजल्ट्स.
ठीक है। सो ऑल 3 रिजल्ट आई थिंक हमने प्रूव किया और आपको समझ में भी आया होगा, राइट। सो इफ़ यू लाइक दिस थिंग, है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ ऑफ ए BPT, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस क्लास, सो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल so that other students also get the benefit of this class, right? So by the meantime, bye bye to all of you.